Okay, friends, in this video, we are going to solve some examples which are asked, those are asked in previous year. So this is the first question. The point group obtained by adding symmetry operation to sigma h to the point group C4. So what is the answer of this question that we have to find? And it was asked in CSIR June 16. Okay, so question is the point group obtained by adding symmetry operation sigma h to the point group of C4, which will be the point group. Okay, so for example, अपने को पता है C4 point group है. C4 में क्या क्या elements आते हैं? Symmetry elements. That is E. Then there would be C4 only. Okay, so E and C4 will be the only element of point group C4. Now, if we are adding in sigma h in this group, okay, so what will happen? This point group will be turned into C4H. It is very simple. So question, answer B, option B is the right answer for this question. The second question that was asked in examination of CSIR, that was asked in December 2015, that the molecule diborane belongs to symmetry group. यानी diborane का what point group क्या है? Okay, so diborane का structure अगर we draw the structure of diborane, so it looks like this is OB, this is H, this is B, this is H, this is B, this is H, this is H, this is H, and this is H. This is the structure of diborane. और ये क्या है? This is called banana bond. Okay, so now we have to find out the point group. So if we see the symmetry axis first, okay, so we can pass a symmetry axis from here to here, okay, in Z direction. We can pass the symmetric axis here to here, it is the in Y direction. We can pass symmetry axis in X direction also. So it has C2 Z, C2 X, C2 Y. It means its principal axis will be C2 and these will be subsidiary axis. So that's why its point group will be start from D and it would be D2. Now we have to see the vertical planes. Okay, it has vertical plane like this. So that's why it will have two number of vertical plane. Then we will see the horizontal plane. If our principal axis is in J direction, then horizontal plane will be in this direction. Okay, so it would have sigma h also. So now by compiling these three sigma symmetry elements, we can determine or we can say that it belongs to D to H point group. So the point group of diborane is D to H. Okay, so next question is the product of C2X into sigma XY क्या होगा? अपने को इसका प्रोडक्ट निकालना है. Okay, so C2X and sigma XY. तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो राइट हैंड साइड लिखा होगा उसके सामने अपन पास में लिख देते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स. ओके, X, Y and Z तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. अब अपने को सिग्मा XY विल हैव टू अप्लाई ऑन XYZ कोऑर्डिनेट्स, इनके ऊपर अप्लाई करना है. ओके, सो C2X तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा इनटू सिग्मा XY को अप्लाई करेंगे तो X और Y विल नॉट बी चेंज बट Z विल बी चेंज. तो X तो वैसा का वैसे ही रहेगा, Y वैसा का वैसा ही, बट Z क्या हो जाएगा? -Z. ओके, सो नाउ C2X के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास? X, Y और -Z. अब C2X में X है तो X ऐसा ही रहेगा बट Y और Z विल बी चेंज. सो X तो ऐसा का ऐसा ही रहा, Y माइनस हो जाएगा और Z क्या है? -Z है, ये हो जाएगा प्लस का Z.
तो अब अगर किसी भी कोऑर्डिनेट्स में अगर जितने पॉजिटिव साइंस वाले कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है, सिग्मा में अगर 2 है तो सिग्मा में आ जाते हैं, 2 है वो सिग्मा में आ जाते हैं। अगर 2 पॉजिटिव है तो वो प्लेन में आते हैं, और अगर एक पॉजिटिव है तो किस में आता है, एक्सिस में। सो इसमें 2 पॉजिटिव है एक्स और जेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड इज द ए, so that's why it is this option, A option is the right option. इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है कि द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एक्स वाई एंड एस फोर जेड विल बी, ये पूछा गया है CSIR दिसंबर 40। सो सिग्मा एक्स वाई इंटू एस फोर जेड का प्रोडक्ट निकालना है, तो अपने को इसके ऊपर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करेंगे। देन सिग्मा एक्स वाई एज इट इज डॉट, अब S4 को अपन क्या लिख सकते हैं, S4Z को वी कैन राइट C4Z एंड सिग्मा H, राइट। सो X Y एंड Z। नाउ सिग्मा H के ऊपर अपन XYZ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वी हैव टू अप्लाई सिग्मा H। अगर Z मोलिकुलर एक्सिस है तो सिग्मा H कौन सा होगा, जैसे देखो ये Z, ये X और ये Y, ये Y, ये Z और ये X। तो इसमें क्या है, C4Z दे रखा है, मतलब ये अपना है प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वी हैव टू चेक कि कौन सा प्लेन सिग्मा H होगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस सिग्मा H क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हो गया, अब ये वाला प्लेन, यानी कि XY प्लेन, राइट। सो वी कैन राइट C4Z सिग्मा XY, और इसको अप्लाई करते हैं अपन XY और Z के ऊपर, और सिग्मा एक्स वाई विल बी एज इट इज। तो सिग्मा एक्स वाई को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स मींस साइन विल नॉट बी चेंज बट जेड साइन विल बी चेंज। तो C4Z इंटू एक्स वाई तो एज इट इज रहा, बट जेड हो गया चेंज। ओके, सिग्मा एक्स वाई। अब C4Z को इसके ऊपर अप्लाई करो तो जेड एज इट इज रहेगा, बट इसके साइन हो जाएंगे चेंज। तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, या सिग्मा एक्स। क्यों हुआ ये, C4Z है तो जेड का साइन तो एज इट इज रहेगा, बट इनके माइनस हो जाते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब जब तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो एक्स वाई के साइन तो सेम रहेंगे, बट जेड का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक्स ऐसा कैसा रहेगा माइनस वाई, बट जेड का साइन क्या हो गया चेंज, यानी कि it has been turned into positive sign. So now final coordinates are minus x, minus y and z। अगर दो माइनस है तो अपन उसको एक्सिस मानते हैं, राइट। और अपन इसमें C4 लगा रहे हैं तो C4 और z पॉजिटिव है मीन्स C4 z, राइट। दिस आंसर विल बी राइट आंसर C4 z। अब C4 z कौन सा है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि the symmetry point group of propine is, ये पूछा गया है CSIR जून 14 में। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख देते हैं अपन, सी सी सी, आई ने मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, तो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज H एंड दिस इज H3। ओके, तो इसको अपन देखो, इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, then again C, then H, then H and then H। तो ये अपने को देखो एक अमोनिया मोलिक्यूल टाइप दिख रहा है, राइट। अगर ये अमोनिया मोलिक्यूल टाइप दिख रहा है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C3V। so that's why C3V is answer, so option B is right option। so next question is the low temperature minus, this is 98 degree centigrade है ना। so at low temperature 19F NMR spectrum of SF4 shows doublet of triplets, it is consistent with
द पॉइंट ग्रुप मीन्स इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो CSIR जून 14 में ये पूछा गया है। नाउ ये अपने को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इसका स्पेक्ट्रम डेटा दे दिया है, बट SF4 को अगर अपन देखेंगे तो SF4 की ज्योमेट्री होती है, ऐसी कुछ ज्योमेट्री होती है, सीसो टाइप ज्योमेट्री होती है। ओके, तो सीसो टाइप ज्योमेट्री हो गई, यहाँ पे इसके लोन पे रहते हैं, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाता है, सिंपल C2V। सो आंसर क्या होगा, डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो आस्क्ड इन जून 14, CSIR में जून 14 में पूछा गया है कि द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट C2X एंड C2Y का प्रोडक्ट आपको बताना है। तो C2X इंटू C2Y, प्रोसेस वही है, सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने का, फिर 1 बाय 1 अपने को अप्लाई करने का। C2Y है तो Y will not be changed but X and Z will be changed, so minus X Y and minus Z. Now it is to C2X, X will not be changed but Y and Z will be changed, so X minus Y and plus Z. Okay, अब दो चेंज हो रहे हैं X and Y, और बचा गया पॉजिटिव में Z, तो आंसर क्या हो गया C2Z। C2Z C option, so that's why option C is the right option. Okay, so next question is identify the, this is a Mulliken, है ना, Mulliken symbols या notation for the following, and it was asked in CSIR June 13. So एक कैरेक्टर टेबल का कुछ डेटा दिया हुआ है एंड अपने को पूछा है कि इसमें Mulliken नोटेशन इसके लिए क्या होगा। So Mulliken नोटेशन के लिए we have to have the knowledge of the rule which are applied for Mulliken symbol. Mulliken symbol के जो रूल है उनके लिए अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, E की वैल्यू, E की मतलब आइडेंटिटी का करेक्टर, आइडेंटिटी का करेक्टर क्या कहलाता है, डायमेंशन। ओके, अगर डायमेंशन 1 है सो इट इज 1D, अगर डायमेंशन 2 होता है तो 2D, और अगर डायमेंशन 3 है तो 3D। अब इसमें देखो E का करेक्टर कितना लिखा है, 1, तो ये हो गया 1D, और अगर 1D होता है तो क्या लिखते हैं, अगर 1D है अपने पास तो इसमें अपन लिखते हैं A और B, A या B में से कुछ एक लिखते हैं। अगर 2D है तो अपन लिखते हैं E, एंड अगर 3D है तो अपन लिखते हैं D या F। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 1 है तो अपन क्या लिखेंगे, A और B। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखने का, प्रिंसिपल एक्सिस अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है तो क्या लिखते हैं, A, और अगर ये नेगेटिव साइन है यानी कि एंटी सिमेट्री है तो क्या लिखते हैं, B। अब इस केस में देखो सी एन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें क्या पॉजिटिव साइन है तो वी विल राइट A। ओके, नाउ वी हैव टू सी द सब्सिडियरी एक्सिस फॉर सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए। सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या देखते हैं अपन, सब्सिडियरी एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो 2, इस केस में क्या नेगेटिव है तो दैट्स व्हाई वी विल राइट 8 2। क्लियर, नाउ वी हैव टू सी आई, आई मींस आई कब देखते हैं, जब अपने को G और U लगाना हो। अगर पॉजिटिव आई है तो G, नेगेटिव आई है तो U। G मीन्स जीराड, U मीन्स अनजीराड, जीराड मीन्स सिमेट्रिक, अनजीराड मीन्स एंटी सिमेट्रिक, सो या एसिमेट्रिक। सो I की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, so that's why we will put U, A to U। एंड सिग्मा एच भी दिया हुआ है इसमें, तो सिग्मा एच कब देखते हैं, जब अपने को डैश या डबल डैश या प्राइम और डबल प्राइम लगाने होते हैं। तो सिग्मा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या है, अपने को सिंगल प्राइम लगाना है, अगर ये नेगेटिव है देन वी हैव टू पुट डबल प्राइम, so it is negative, so that's why we will put double prime। So now just check
in the options 1A 2U double dash A 2U double dash. So that's why B option is the right option. The next question is identify the point group. ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके लिए अपने को पॉइंट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है where all C कार्बन बॉन्ड लेंथ आर द इक्वल. यहाँ पे क्या सारी की सारी कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो इसके लिए अपने को पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करना है. ओके, सो इसके लिए अपन पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट कर सकते. ओके, सो फर्स्ट अपने को प्रिंसिपल एक्सिस देखने का है. सो अपन प्रिंसिपल एक्सिस देखो, इसमें C2 प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है. क्यों हो सकती है? अगर अपन इसको यहाँ से x डायरेक्शन में अगर C2 एक्सिस, एक मिनट में कलर करके बताता हूँ. अगर ये C2 एक्सिस अपन यहाँ से पुट करते हैं, ओके, तो ये x चला जाएगा यहाँ, ये x चला जाएगा इस साइड और ये x चला जाएगा इस साइड. सो x डायरेक्शन में भी एक्सिस प्रेजेंट है. अगर अपन को z डायरेक्शन करना है, z डायरेक्शन में अगर C2 करनी है ये z डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये x पलट के इस साइड आ जाएगा, राइट, और ये x पलट के इस साइड आ जाएगा और ये x इस साइड आ जाएगा. तो z में भी क्या है, इन z डायरेक्शन देयर इज a C2 एक्सिस. नाउ y, so y अपन देख सकते हैं डायगोनल में दोनों एक्सिस प्रेजेंट है, so that's why y में भी एक्सिस प्रेजेंट है. तो इसमें क्या हो गया, C2 एक्सिस प्रेजेंट है z डायरेक्शन में, C2 एक्सिस प्रेजेंट है x डायरेक्शन में, C2 एक्सिस प्रेजेंट है y डायरेक्शन में. So that's why इसका पॉइंट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा, D2 से. ये हो गई फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग वी हैव टू सी द प्लेन. अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन तो प्रेजेंट नहीं होगा, देखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर अपन को प्रेजेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल अगर प्लेन प्रेजेंट करना है तो अगर z प्रिंसिपल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे होगा, राइट. so x will be reflected here but there is no x, so that's why sigma h will be absent but sigma v may be present क्योंकि it is parallel. तो ये अगर यहाँ से अपन इसमें एक डालेंगे तो क्या होगा, ये x रिफ्लेक्ट करेगा इस साइड, ये x रिफ्लेक्ट करेगा इस साइड, राइट. ऐसे वाले में सिग्मा वी अपन वी कैन पुट. सो इसमें सिग्मा वी प्रेजेंट है, और अगर सिग्मा वी प्रेजेंट होता है और सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता है तो सिग्मा वी को वी कैन से इट इज सिग्मा डी. ओके, सो डी टू डी, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, डी टू डी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल हैज S6 सिमेट्री एलिमेंट. इनमें से अपने को वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच मॉलिक्यूल हैज S6 symmetry. Okay, so B2S6 principal axis, C2, CH4, इसमें तो C3, C2, then PH5, maybe C3, SF6, C6. So now we will consider SF6 and we will try to find out कि कैसे इसमें S6 axis present है. Okay, अगर S6 है तो it would be C6 plus sigma H, right? So SF6, S, F, 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 and this is F. So it has horizontal plane, it has C6 axis and sigma H. Okay, तो अपने की ट्रिक क्या होती है, अगर किसी में प्रिंसिपल एक्सिस है Cn वैल्यू है, so उसमें n number of C2 will be present, n number of sigma V will be present, right, and S के केस में इसमें हो सकती है Sn प्रेजेंट हो या फिर S2n प्रेजेंट हो. Sn कब प्रेजेंट होगी, जब सिग्मा H प्रेजेंट होगा. S2n कब प्रेजेंट होगी, जब सिग्मा H एब्सेंट होगा. ओके, तो ये केस अभी अपने को लग रहा है. सो इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई SF6 में क्या होगी, S6 सिमेट्री एलिमेंट विल बी प्रेजेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है आपको C2V का, C2V का कैरेक्टर टेबल आपके पास है एंड ये पूछा है कि इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बिलोंग टू A1 एंड B1 irreducible representations, the allowed electronic transition from A2 to B1
is, and it was asked in CSIR June 12. ओके, सो इस केस में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो अपन कैसा करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू राइट द कैरेक्टर्स फॉर गिवन ट्रांजिशन। तो अपने को दिया हुआ है A1 एंड B1। सो A1 के लिए ये क्या है, 1, कैरेक्टर क्या है 1 1 1 1। नाउ B1 के लिए वी विल राइट, B1 के लिए क्या है 1 -1 1 and 1। now we have to multiply, so 1 1 -1 and 1। now these are the final character, okay, so these are final character and we have to check whether these are present in the character table or not। so agar if we check the character table, so in case of B1 these characters are written A -1 1 and sorry this is -1, okay, so -1 B1 के केस में क्या है कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो अब अगर ऐसे मिल रहे हैं आगे कैरेक्टर्स मिलते हैं मीन्स जो भी उन मल्टीप्लाई के बाद A1 इंटू B1, ओके, मल्टीप्लाई के बाद अगर कैरेक्टर टेबल्स मिल जाते हैं तो वो ट्रांजिशन क्या कहलाता है, अलाउड ट्रांजिशन। और अगर नहीं मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोरबिडन ट्रांजिशन। ओके, सो अब मिल गए हैं तो B1 के सामने अपने को देखना है क्या लिखा है, x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है। तो इस केस में x लिखा है तो जो भी लिखा हो कैरेक्टर कोऑर्डिनेट वो क्या होता है उस दिशा में या उस डायरेक्शन में क्या होता है, पोलराइज होता है। सो दैट्स व्हाई this is x polarized because x is written here, so it is x polarized and answer will be option number C। so with this way such kind of questions can be solved।